Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, just wait. As students are still joining, just wait for 3-4 minutes. See, बच्चे, there are so many students whose names are showing as live CID 166 or something like that, some number. Can't you join with your names? Your names are not showing. Ma'am, can you please check out? Have I joined with my name? What's your name? No, Uh, your name is not showing. This address is live CID 166 163, something Ma'am, I like am that. speaking Rahul Goyal. Okay, but there are so many students whose names I cannot see. Ma'am, please check. Are you able to see Rahul Goyal any name? No, just a second. I am sharing the screen so that you can see these names. Otherwise, there will be problem na in marking your attendance. Ma'am, it was the problem in last class also. Teacher said Yes, you are joining with your name. just a second. Okay. Bhavuk Ma'am, is there? Bhavuk is there or not? Ma'am, yes, Bhavuk is there, ma'am, but he can't speak, ma'am. Actually, he has some dental issues, ma'am. He recently had been going to a dentist, so he can't speak, ma'am. He had a dental operation. Okay. He is there in the class. Yeah, ma'am. Ma'am, ma'am, just a minute, ma'am. Ma'am, if he's there, you can make him the presenter, ma'am. Yes. Go. Good evening, ma'am. Good evening, Bhavuk. Uh, I am making you the presenter, okay? You just add the guests, okay? Yeah, ma'am. Bhavuk is there, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Good everyone. evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Bhavuk, please raise your hand.
Okay. I will do one thing at the end. Whose, these numbers are written like this. You just give me your name so that I can mark your present attendance, right? There are many students. Just wait, students are still joining. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Janvi, please mute yourself. तो फिर मम्मी और दादा बात कर रहे थे शांति से, तो दादा बोलते या तो रोहित को भेजो, रोहित मेरे घर। Please mute yourself, everyone. Okay, let's start the class. Okay, we were discussing permutation and combinations formulas, right? In last class, we did example of permutation, how to solve the formula, right? And the shortcut to solve it. Right? Similarly, we can do it similarly for combination also, right? As you can see, the formula for combination is NCR equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. This was the formula for combination.
and combination is used in selection, right? So if there is some question, suppose we have to solve 15 C2, right? We have to solve 15 C2. How we will solve this? N is 15 here, R is 2. And again there is one condition, that is N is greater than equal to R. ठीक है? N cannot be less than R. N is always greater than equal to R. It is always like this only, 15 C2. ठीक है? 2 C15 नहीं हो सकता है, 2 C15. 15 C2 टाइप से ही होगा, because N is always greater than equal to R. राइट तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब फॉर्मूले में यू विल पुट दीज वैल्यूज, इट विल बिकम 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल and 15 minus 2 factorial, right? Factorial. Yes, so 15 minus 2 is 13 factorial. 15 minus please mute yourself. Everyone, please mute yourself. Whenever you have any doubts or you need to ask something, then you just unmute yourself. So it will become 15 factorial upon 2 factorial into 15 minus 2 is 13 factorial, right? ठीक है, और हम क्या करेंगे, अभी देखो 15 को मैं कैसे एक्सपेंड कर सकती हूँ. 15 we will write it as 15. The answer is 105. Okay, just a second. 15 into 14 into 13 factorial. 13 factorial, right? So that 13 factorial and 13 factorial will be cancelled out. Okay, so it will be 2 factorial is nothing but 2 only, right? 2 into 1 होगा तो 2 ही आएगा, into 13 factorial. So this 13 factorial will be cancelled out. ठीक है, ये हमने 13 फैक्टोरियल को 13 फैक्टोरियल से कट कर दिया है ना? और बचा क्या, 2 बचा हुआ है यहाँ पे, तो 2 को भी आप 14 से कट करके you can write 7. So 15 into 7 is the correct answer, right? 105. Yes, 105. ठीक है, and one more short trick is there. ठीक है, कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या शॉर्ट ट्रिक है, यही सेम अगर मैं करती हूँ 15C2, what you will do is, आप जो आपका n है ना 15, you will expend 15 on the numerator r times, यानी कि you have to expend 15 2 times on the numerator. एक और शॉर्ट ट्रिक है ये, 15 को you will expend 2 times. ठीक है, तो हमने क्या करा, 15 into 14 लिख दिया, right? and upon जो आपका ये है ना, जो r था, जो यहाँ पर ये 2 था हमारा, इसको उतने ही मतलब पूरा 1 तक एक्सपेंड कर दो, तो ये क्या आएगा, 2 multiplied by 1. See, this will be the same, 105. ठीक है, you don't have to always substitute the formula. Directly भी आप कर सकते हो. जब calculations बड़ी होंगी तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आप ऐसे ही पुट करोगे वैल्यूज. समझ आई ये बात?
एक एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे मान लो हमें सॉल्व करना है 9C3, ठीक है, 9C3 आई एम सॉल्विंग। क्या करेंगे हम, वी विल एक्सपेंड 9 3 टाइम्स ऑन द न्यूमरेटर, ठीक है, 9 into 8 into 7 अपॉन 3 को पूरा मैक्सिमम 1 तक पूरा, मतलब 3 फैक्टोरियल आप सॉल्व कर दो, 3 into 2 into 1, right? So this is the short formula, ठीक है। फिर आप इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। हर बार, क्योंकि देखो जब वैल्यूज बड़ी होंगी, जैसे सपोज आपको ये सॉल्व करना है, सपोज आपको ये सॉल्व करना है 7C2 into 15C3 अपॉन 9C2 सपोज। तो अब क्या आप इसमें 3 बार फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप जो मैंने बताया है ऐसे इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड करके लिख देना है, ठीक है। 7C2 को हम क्या लिखेंगे, 7 into 6 अपॉन 2 into 1। 15C3 को वी विल राइट 15 into 14 into 13 अपॉन 3 into 2, और 9C2 को वी विल राइट 9 into 8 अपॉन 2, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैम ये जो 15C3 है मैम, इसमें तो ये करेंगे ना 15 into 14 into 13, फिर हाँ। नीचे डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1। यस, ओके, ठीक है। तो ये आपको क्या इस तरीके से क्या करना होगा ना, हमें 3 बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। देयर इज नो नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, ठीक है। यू विल डायरेक्टली एक्सपेंड दिस। तो मैंने आपको दोनों बता दिए कि परम्यूटेशन में कैसे शॉर्ट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में कैसे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया है हमारा। फिर आगे मैं वो बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास बहुत बार अभी जब हम पढ़ेंगे तो भी आपके पास कई बार ये कंडीशन आएगी, P implies Q टाइप की, है ना। P implies Q. Suppose there is a statement P implies Q. What does it mean in general? What is P implies Q? Ma'am, P equals to Q. P? P equals to Q. No. बिल्कुल रॉन्ग है वो, P equals to Q नहीं होगा। P implies Q बहुत बहुत जगह पे आप पढ़ोगे अभी आगे। तो देखो P implies Q, और कोई बताना चाहेगा what is P implies Q? Ma'am, P is related to Q. No, this is not correct. Q. P implies Ma'am, Q, not yes. equal to Q. No. Times Q. Ma'am, P in relation to Q. Ma'am, if नहीं P है। then Q. Yes. If P then Q. So true, ठीक है। और implies है तो क्या है इसका मतलब कि वो one way है, true, कि P is necessary for Q and Q is only sufficient for P। समझे ये बात Ma'am, कि P implies Q? हाँ जी। ma'am दोबारा तब एक बार। What? Ma'am, can you please explain again? What should I explain? P implies Q? Yes, yes, समझ नहीं आया। हाँ मैं बता रही हूँ, अभी मैं आ रही हूँ इसी पर ही। देखो P implies Q का मतलब है if P then Q, ठीक है, कि अगर P ट्रू है then
Q is also true. ठीक है, हमने ये आप लोगों ने कहीं ट्रूथ वैल्यूज पढ़े होंगे, T और F हमने पढ़ा है ना, ट्रू फॉल्स पढ़ा है कहीं पर आप लोगों ने, ट्रूथ वैल्यूज Yes, ma'am. है ना, जहाँ पर ये Yes, ma'am. कंजक्शन डिजंक्शन, ऐसे कंजक्शन डिजंक्शन एंड और होता था ये, है ना, नेगेशन Yes, होता ma'am. था ये। तो अगर सपोज अगर नहीं भी पढ़ा है तो Yes, ma'am. डजंट मैटर, मैं वैसे ही बता देती हूँ। P implies Q, इम्प्लीकेशन है, ठीक है, कि अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर Q condition, that is Ma'am, P your voice implies is not Q. clear. For example, my voice Ma'am, is your not voice is clear to breaking, every. ma'am. Oh, maybe there is My some voice is network cracking. issue. It is cracking. Okay, just a second. Maybe वो वाईफाई का नेटवर्क होगा फ्लक्चुएट। अभी ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, वो maybe that this is because of the network. Right. तो देखो P implies Q, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा every differentiable function is continuous, पढ़ा है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Every, है ना? Yes, ma'am. तो वो क्या Yes. होता है, वो देखो वो एक सेम कंडीशन होती है कि क्या D को मैं डिफरेंशिएशन से वो कर रही हूँ, डेरिवेबल से मैं कर रही हूँ। सो D इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, कि जो हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, राइट, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, ठीक है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स का मतलब कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। समझ आई ये बात? इसका हमने एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा सा पढ़ा हुआ है, मैं मतलब बस जस्ट आपको बता दूं, ये अभी हमारे में है नहीं है सिलेबस में, लेकिन इम्प्लीकेशन तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह पे ये यूज होगा, ठीक है। P implies Q, तो जैसे देखो मॉड एक्स होता है हमारा ग्राफ, मॉड एक्स का ऐसा ग्राफ होता है ना, मॉड एक्स वो क्या होता है? Yes, ma'am. है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, है ना। तो ये कन्वर्स के लिए हमने ये एग्जाम्पल दे दिया। तो इसलिए इम्प्लीकेशन का मतलब ये है कि इफ P देन Q, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि इम्प्लाइज में क्या होता है, ओनली वन वे कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। बट इन केस ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, जो सेकंड कंडीशन हमारी है P इफ एंड ओनली इफ Q, कि अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, लेकिन अगर Q ट्रू है तो P भी ट्रू होगा, बोथ वेज ट्रू है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, राइट। बहुत जगह पे आप देखोगे ये साइन लगे होंगे, अगर आपको साइंस का मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे सॉल्व होगा ना, ठीक है। और एक और हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर P इम्प्लाइज Q करता है, तो देखो Q इम्प्लाइज P तो नहीं होगा, कन्वर्स टू Ma'am, your voice is cracking a lot. implies Ma'am, you're not audible. Ma'am, there is a slight lag. लैग तो होगा बच्चे, देखो लैग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। Ma'am, ओ आपकी मे voice बी crack कर रही है। क्रैक कर रही है, ज्यादा क्रैक हो रही है क्या? Ma'am, voice is Yes, ma'am. cracking. No. मैम बीच में ठीक आ रही है, फिर अचानक से ना म्यूट हो जाती है, जैसे कि इंटरनेट नहीं आ रहा तो वैसे है। अच्छा, बाकी पूरा सही जस्ट है। अ सेकेंड। हेलो, is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. There may be some network issues, that is why. ठीक है,
अच्छा देखो, अगर P implies Ma'am, again you are not audible. function is continuous, Yes, पर ma'am. every continuous मैम आवाज नहीं आ रही. Ma'am, you are not audible. मैम आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. हाँ, ये आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में. एक सेकंड आप ये होल्ड करोगे, ठीक है? होल्ड करना, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करती हूँ. ओके? हाँ, बैड नेटवर्क Okay, ma'am. क्वालिटी शो कर रहा है ये. Just a second. Hello. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. is it That's okay? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Maybe there is so much of disturbance because of the video. Okay, तो देखो अभी जब अगर हमारा P implies Q true है तो नेगेशन Q भी इम्प्लाई करेगा नेगेशन P को, है ना? इसी एग्जांपल से समझो, अगर हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, पर हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. ये बात समझ आई है? सारी ये कंडीशन समझ आई है? No, Yes, ma'am. ma'am. Yes, And ma'am. can you please repeat this one again? Yes, ma'am. Understood, ma'am. P क्या है कि हर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ट्रू? ठीक है. Yes, बट ma'am. कन्वर्स में नॉट बी ट्रू. कन्वर्स क्या होगा कि Q इम्प्लाई, यानी कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल. ये कन्वर्स हो गया. ये जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, ठीक है, कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो. लेकिन नेगेशन ऑफ Q यानी कि हर जो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. ठीक है. अगर P implies Q हमारी कोई भी कंडीशन है तो उसका कन्वर्स क्या होता है? Q implies P होता है कन्वर्स. ठीक है. ठीक है ना? तो कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता. लेकिन अगर ये देखो, जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, नेगेशन Q implies नेगेशन P, तो ये ट्रू होता है हमेशा. कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो भाई वो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता. ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर. अब हम आते हैं इफ एंड ओनली इफ कंडीशन पे. इफ एंड ओनली इफ ना मैं आपको बताना चाहूंगी एक्सपोनेंट्स के थ्रू. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, वो भी यूज होंगी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में. जैसे कि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें ना. सपोज 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 raised to the power y. ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? Ma'am, x and y are equal. यस. और ये क्या आएगी? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आएगी. बोथ वेज ट्रू होगा दैट x इज इक्वल टू y. समझ आई ये कंडीशन? कि अगर 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर y होगा तो x इक्वल टू y होगा. एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर x इक्वल टू y है तो 2 की पावर x मस्ट बी इक्वल टू 2 की पावर y. आप 2 को इन जनरल a भी लिख सकते हो. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह पे कोई भी नंबर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर a लिख दूं सपोज, देन ऑल्सो इट होल्ड्स कि a की पावर x
इज इक्वल टू a की पावर y, then this condition also holds. ठीक है कि a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है if and only if x इक्वल टू y. ये हमारे लॉज होते हैं ना एक्सपोनेंट्स के. आप जब क्वेश्चंस कुछ भी आपके पास ऐसा आ जाता है कि आपको सॉल्व करना है ना, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं पावर्स में. ठीक है, फिर हमारे पास कंडीशन और क्या होती है, a raised to the power x into a raised to the power y. क्या होता है ये? हम पावर साइड हो जाएगी. यस है ना, पावर्स x प्लस y. यस. अगर बेस सेम होता है तो ये ध्यान रखना, बेस ए सेम होना चाहिए. ठीक है, Yes, then ma'am. only, yes, then only the powers will be added, right? Then we have third point, we have a raised to the power x upon a raised to the power y. उस केस में क्या होगा? a raised to the power x minus y. हाँ मैम a raised to the power x minus y. यस, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई. ठीक है, फिर अगर हमारे पास है सपोज फोर्थ पॉइंट इज a रेज टू द पावर x अंदर है. ठीक है, एंड ब्रैकेट लगा के उसकी पावर y, देन मैम a raised to the power x into y. मैम a raised to the power x into y. यस, ये तो आता है आप लोगों को, है ना. तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी. बस ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में जब कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम एंड पे आके अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है ना कि दो चीजें कंपेयर करनी है या समथिंग लाइक दैट, तो वो क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं. आधा या एक नंबर उनका कट जाता है इसमें, है ना, सॉल्व करने में. तो ये आप कर सकते हो. फिर हमारे पास रूट में आता है, जैसे कि सपोज रूट m इंटू रूट n. मैम होल रूट mn. हाँ है ना, अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना, रूट के अंदर आ जाते हैं m और n. m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाता है. ठीक है, ये हो गया. अगर कुछ ऐसा लिखा है सपोज x का nth रूट, है ना, हम x की पावर 1 by n जाएगी, 1 by n. x की पावर 1. यस, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर क्या हो जाती है, वो 1 by n में आ जाती है ना. और अगर कुछ ऐसा है x की पावर m है और उसका nth रूट है, देन x की पावर m by n. x to the power m by n. x to the power m by n. हाँ ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है ना. तो ये हमारे बेसिक सी चीजें हैं जो आपको यू मस्ट नो टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना. कहीं पर भी आप कैलकुलेशन में ना मिस्टेक करो. एक चीज और, हम लोगों ने इवन नंबर्स ऑड नंबर्स डिस्कस किए थे, तो हमने रूट m होगा तो क्या बच्चे, रूट m और रूट m होगा तो क्या होगा आप बताओ. रूट m इंटू रूट m क्या होगा, m. यस. ठीक है, रूट m और रूट m विल बी इक्वल टू, देखो क्या होगा पता है क्यों, हर चीज का मैथ्स तो इतना अच्छी चीज है ना, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है. मे बी कि एवरी वन ऑफ यू डज नॉट एग्री विद मी, बट स्टिल मैथ्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है. देखो हर चीज का प्रूफ है आपके पास
m m इंटू m आपने मुझसे पूछा, ठीक है, आप चाहते हो, आपके पास प्रॉपर्टीज है, सॉल्व कर लो उसे। m 1/2 है ना, m 1/2 इंटू m 1/2, तो क्या हो गया, सेम बेस है, सेम पावर है, तो क्या आ गया, m की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो m की पावर 2/2 विच इज इक्वल टू m की पावर 1, है ना, तो m आ गया इससे आपका। ठीक है, तो आपके पास हर एक चीज का प्रूफ है। मैथ्स में तो एवे ही नहीं आ गया कहीं से भी कुछ भी, है ना, एवरीथिंग हैज अ प्रूफ, राइट। अच्छा, मैं एक Yes. जीरो और डिस्कस करना चाहूंगी। जो हम लोगों ने इवन और नंबर्स डिस्कस किए थे ना, जब जीरो हमारा डिस्कस नहीं हुआ आई थिंक, तो जीरो क्या होता है, जीरो इवन नंबर है या नहीं है? मैम Neither जीरो odd इज नाइदर nor ऑड even. नाइदर इवन, बट मैम मैम अगर मैम हमें लेकिन हम जीरो बोलना को पड़े एज अ तो इवन नंबर मान के चल सकते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली हम क्या कह सकते हैं, इवन है या ऑड है या बोथ है या नाइदर? नाइदर ऑड और मैम नाइदर होल इवन नंबर है। Neither even nor odd. नाइदर इवन नॉर ऑड। मैम शुड इसको आई मैम डिलीट दिस मैम पेज? मैम जीरो को शुड हम आई इवन कह सकते हैं मैम। Yes, जस्ट अ ma'am. सेकंड, शुड आई डिलीट दिस पेज? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am, Yes, sure. ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखो अभी आपने कहा भाई जीरो पे हमारा डिस्कशन आके फंस गया है ना, तो यू कैन ऑलवेज प्रूफ एनीथिंग, प्रूव एनीथिंग, राइट। हाँ, एक चीज और बताऊंगी, देखो अगर हमें किसी चीज को प्रूफ करना है, ठीक है, किसी चीज का हमें अगर प्रूफ करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द कंप्लीट प्रूफ। ठीक है, कोई भी थ्योरम है, कुछ भी है, अगर आपको प्रूफ करना है कि सब प्रूफ करो कि भाई ये है, मैं कहती हूँ अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो प्रूफ करो, तो यू हैव टू डू द होल प्रूफ, ठीक है। लेकिन अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, अगर आपको पता चल रहा भाई ये ऐसा नहीं है, तो ओनली अ सिंगल एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट। ठीक है, अगर आपको ये लिखना है, डिस्प्रूव करना है ना, टू डिस्प्रूव समथिंग, जस्ट अ सिंगल एग्जाम्पल इज इनफ टू डिस्प्रूव एनीथिंग। ठीक है, अगर आप डिस्प्रूव कर दोगे किसी भी एक एग्जाम्पल से कि भाई देखो मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया है और इसमें तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, तो यानी कि वो कंडीशन होल्ड नहीं करती होगी। समझ आई? तो अगर आपको कभी भी किसी चीज का प्रूफ करना है पूरा, तो आप ये नहीं कि कोई भी एग्जाम्पल उठा लो और एग्जाम्पल लेके आप प्रूफ कर दो, नहीं, हमेशा प्रूफ इन जनरल लेके करोगे, जैसे एन मान के करोगे हमेशा। कोई भी एग्जाम्पल 2 3 4 लेके कभी प्रूफ नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब अगर आपको कुछ चीज डिस्प्रूव करनी है, तो आप किसी भी एक एग्जाम्पल को उठा के देख लो कि भाई ऐसे देखो हम ऐसा कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। ठीक है ना, वरना बच्चे क्या करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ाया पहले भी, तो उसमें प्रूफ्स थे कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, है ना, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, या ऐसा, है ना, या कुछ भी कि भाई m+n सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज इवन। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि भाई दो एग्जाम्पल उन्होंने दो ले लिए नंबर, जैसे भाई 2 ले लिया, 2 + 4, ठीक है, उसने क्या करा, 2 + 4 कर दिया, इट इज इक्वल टू 6, हेंस एडिशन ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। मेरे जैसा अगर टीचर होगा ना, या मतलब कोई भी ऐसा, तो उसको पूरा काट देगा। ठीक है, क्योंकि प्रूफ नहीं करोगे इससे, तो भाई यू हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से मैं पूरी दुनिया के नंबर्स कैसे बोल सकती हूँ कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन? नो, है ना, उसके लिए यू हैव टू डू कंप्लीट प्रूफ। लेट अस सपोज कंसीडर टू इवन नंबर्स, कंसीडर फर्स्ट नंबर एज x इक्वल टू 2m, इस टाइप से आपको प्रूफ करना चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है, एंड y इक्वल टू 2n, right, where m and n are integers. Now add both, what you will get?
ट्वाइस ऑफ m प्लस n। यस, तो फिर आप ऐड करोगे, यू विल टेक कॉमन 2 लाइक दिस, m प्लस n आप कर दोगे ऐसे, है ना। ये तो जस्ट एक मैं वैसे ही एग्जाम्पल आपको लेके बता रही हूँ ये। एंड वी नो m प्लस n इज अगेन एन इंटीजर एंड 2 टाइम्स इंटीजर इज अगेन एन इवन नंबर, therefore sum of two even numbers is again even number। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आप डिस्प्रूव करना चाहते हो किसी को तो आप किसी एक एग्जाम्पल से डिस्प्रूव कर दो, राइट। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी जीरो की। जीरो इवन है या नहीं है? इवन की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, एंड आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 2 वी गेट एन इंटीजर, ठीक है। तो क्या जीरो उसकी डेफिनेशन को होल्ड करता है? इफ आई डिवाइड, यस, है ना। तो इफ आई डिवाइड 0 by 2, तो इसलिए हर चीज का प्रूफ है मैथ्स में, कुछ भी ऐसे ही कहीं से भी नहीं आ गया है, ठीक है ना। तो इफ आई डिवाइड 0 by 2 it will be equal to 0 only, which is an integer, therefore it satisfies the definition of even numbers. Yes, ma'am. Hence 0 will be considered as even number, ठीक है। लेकिन देखो जनरली क्या होता है ना, हम कहीं पे भी देखते हैं इवन नंबर्स, तो 2 से जब हम स्टार्ट करते हैं 2 4 6 8, तो क्या होता है पॉजिटिव इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीरो कंसीडर किया गया है ना, उसे हम नॉन नेगेटिव इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। जीरो इज नॉन नेगेटिव इवन नंबर, राइट। तो अब सिमिलरली जीरो जो है ऑड नहीं होगा। ऑड क्यों नहीं होगा? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, any number n which can be represented as 2k plus 1, है ना। any number which can be represented as 2k plus 1 is said to be odd, or which is not divisible by 2 is odd, है ना। तो भी हम क्या कर सकते हैं, n में अगर 0 चेक कर रही हूं तो क्या आएगा 0, और यहाँ पर k क्या होता है, व्हाट इज k? नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर ले लो या हम इंटीजर भी ले सकते हैं यहाँ पर k की वैल्यू। तो हमारा 0 अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ n की, तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखो 2k plus 1, ठीक है। What we will get, k is equal to -1 by 2 which is not an integer। तो देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ये बात, ठीक है। where k is equal to -1 by 2, अगर 0 ऑड होता तो ये कंडीशन आ जाती विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसलिए 0 को इवन कंसीडर किया गया है, ऑड नहीं किया गया है। और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि 0 इज, यस यस मैम, तो -2 -4 है मैम, वो भी तो इवन होते हैं ना, पर हम बोलते हैं वो नहीं इवन है। हम हमेशा इवन शुरू करते हैं 2 4 से, हम उन्हें गिनते हैं -2 -4 को। वो हम इसलिए क्योंकि हम हमेशा वो बात कर रहे हैं ना कि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना हम इवन नंबर्स को, है ना। हम पॉजिटिव, बट लिखा होता है इवन नंबर्स और लिखा होता है 2 4 6, वहाँ ये मेंशन नहीं होता कि पॉजिटिव या नेगेटिव, सिर्फ इवन नंबर लिखा होता है। तो वो बिल्कुल बात ठीक है कि आप, ठीक है, इवन नंबर्स को हम 2 4 6 8 ही कंसीडर करेंगे। उसमें एक केस 0 आ जाता है, अगर एक केस 0 आ जाता है तो हम लेकिन 0 के लिए मेंशन करते हैं इट इज अ नॉन नेगेटिव इवन नंबर, ठीक है ना। 0 के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि नॉन नेगेटिव इवन नंबर है 0, ठीक है। ओके ओके, और मैं क्या डिस्कस करना चाह रही थी, और किस चीज में आप लोगों को कोई डाउट है, कोई भी जनरल वो जैसे कहते हैं किसी भी जनरली किसी भी उसमें आपको कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा टॉपिक जो टफ है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? Excuse me, ma'am.
Yes. Ma'am, do we have integration and differentiation in our syllabus? No, बच्चे, that is not a part of your syllabus. I have shared with you the syllabus. मैं एक बार शेयर कर देती हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? Okay, ma'am. Thank you. मैं एक बार शेयर कर देती हूँ सिलेबस. This is your syllabus. You can take the screenshot. और आप ले ही लो इसका screenshot ना, so that आपको पता रहे कि भाई हम क्या क्या टॉपिक्स हम कर रहे हैं. और है ना? मैम ये सेमेस्टर के? Yes, this is for semester 1. ओके मैम. ठीक है, 5 यूनिट्स आर देयर. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये चीजें. Thank you, ma'am. ओके, Ma'am? सभी लोग इस. यस. Ma'am, can you take compound interest as the next topic for the next class? कंपाउंड इंटरेस्ट फिर वो पता है एक्चुअली वो मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, वो है ना सारे फॉर्मूला बेस्ड है. जैसे कि ये तो आपको जनरल पता है कि जैसे भाई सपोज हमारे पास कोई एक अमाउंट है ना? आप लोगों ने भाई आपने कोई भी एक वैल्यू है, अमाउंट है कोई, उस पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट पे पैसे ले रहे हो, ठीक है? तो 2 टाइप का होता है. प्रिंसिपल हमारे पास होता है उसमें, एसआई में, सिंपल इंटरेस्ट में, है ना? किस रेट पर इंटरेस्ट लग रहा है वो होता है, एंड कितने टाइम के लिए लग रहा है वो होता है. ठीक है, तो हमारे पास सिंपल ये तो फॉर्मूले आ जाएंगे फिर उसमें ना, इसलिए दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट राइट So it नाउ. is the basic level for these semesters. यस. Okay, thank you. ओके, तो एसआई का हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, पी आर टी अपॉन 100, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो ये तो फिर हमारा सिलेबस का ही हो जाएगा, है ना? मैं अभी कंसेप्ट्स क्लियर करना चाह रही हूँ सो दैट किसी चीज में भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन पार्ट, है ना? Okay, ma'am. ये तो फिर हमारा प्रॉपर फॉर्मूला हो गया, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, है ना? और अमाउंट फिर हमारे पास एक टर्म होती है अमाउंट. अमाउंट हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट, है ना? इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो वो सारे हम पढ़ेंगे कि अगर इफ द रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, है ना? हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो सारे फॉर्मूले हैं उसमें. ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट यूनिट है दैट इज ऑल्सो यूनिट 1 इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूलाज. डिस्काउंट है, कमीशन है, इसमें पे रोल है. पे रोल में होता है कि भाई किस तरीके से पे दी जा रही है, उसमें टीडी जैसे पे मिलती है किसी में भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या होता है, एक बेसिक पे होती है, उस पे एचआरए मिलता है, टीए डीए मिलता है ना? ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, तो उन सबको ऐड करके टोटल पे कितनी होती है, लाइक दिस. ठीक है, तो पेरोल में वो है, स्टॉक्स और शेयर है, तो ऑल दीज थिंग्स आर फॉर्मूला बेस्ड, राइट? यू हैव टू जस्ट लर्न द फॉर्मूला. एन्युटी है, एन्युटी के भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, तो वो हमने सॉल्व करना है. यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको पावर वाली चीजें यहाँ बताई ना, ये वो एक्स की पावर वो वाला, तो जब हम वी विल डू दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पर ये सारे यूज होंगे, पावर्स वाली चीज. ठीक है, मैम हमें कोई मैथ्स की बुक परचेज करनी है? अभी तो बच्चे देयर इज नो नीड टू परचेज एनी बुक. ठीक है, वी विल गिव यू कोर्स पैक आल्सो, एंड यू कैन गेट बुक फ्रॉम द
book bank and from library also. ओके मैम। ओके एक चीज और आई थी मेरे माइंड में। अच्छा फैक्टर्स बनाने आ जाते हैं, किसी भी इक्वेशन के फैक्टर्स बना लोगे? यस मैम। मैम एक बार बता दो। यस मैम। यस मैम। जैसे हमारे पास Yes, ma'am. ओके ओके फिर भी एक एग्जांपल बता दो क्वाड्रेटिक। अच्छा व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हु विल टेल मी? Equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. यस ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है किसी भी इक्वेशन की? हाईएस्ट पावर जो उसके ऊपर लिखी होती है स्क्वायर वगैरह। हाईएस्ट एक्स पावर। के। हाँ और उसकी लेकिन जो हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट जी। पावर हाँ जी। हाईएस्ट पावर। यस तो देखो एक बार फटाफट से ये बता देती हूँ कि अगर इक्वेशन है आपको, यू हैव टू स्प्लिट द इक्वेशन, राइट? यू हैव टू मेक फैक्टर्स, तो यू विल डू दैट। ओके ये मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड रुको। Suppose this is the equation, right? This is a quadratic equation और ये quadratic equation ही solve कर सकते हैं हम ऐसे, है ना? क्यूबिक भी कर सकते हैं, क्यूबिक आपको बता दूंगी। यस ओके तो हमारी इक्वेशन किस टाइप की होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की, राइट? हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन कि बट अच्छा एक चीज और, फंडामेंटल इक्वेशन, फंडामेंटल थ्योरम हमारी क्या होती है? जिस भी इक्वेशन की whatever be the degree of that equation, that equation will have that much roots, right? Suppose this is a quadratic equation. What Yes, is the degree of a quadratic equation? 2. So there will be two 2 ma'am. roots of this equation. ठीक है? Yes. है ना? दो values will be satisfying this equation. तो अभी देखो हम स्प्लिट कैसे करते हैं। मुझे ना ये देखो जो C वाला पार्ट है, जैसे जो 2 है, मैं इसको 2 को ना एक बार येलो से हाईलाइट करती हूँ, ठीक है? ये 2 जो हमारा है, ये 2 मुझे क्या करना है? दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, राइट? और देखो प्लस के साइन लगे हैं दोनों में, तो इसलिए प्लस करके हमारे पास 3 आना चाहिए। समझ आ गई? ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए, दो नंबर्स ऐसे, और प्लस करके 3 आए, कौन कौन से होंगे? 2 and 1 2 और Yes, 1 there 2 is into 1. जब हम प्लस there is करेंगे only 2 plus 1 तो 3x आ जाएगा। हाँ there is only one possibility, that is 2 and 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेंगे, जो भी आ रहा होगा। x होगा। टेक x कॉमन, x plus 2. x प्लस 2। Yes ma'am. ब्रैकेट में। ठीक है, now take whatever be common from last two values, that is you will get only 1 1, right? 1 ब्रैकेट में x plus 2। x plus 2। ठीक है, so अब हम क्या करेंगे? x plus 2 को कॉमन ले लेंगे इसमें से, what we are left with x plus 1 into
x plus 2. So these are the two factors, right? Equal to 0. So ma'am, either x is -1 or x is -2 then? Yes, x is equal to -1 or x is equal to -2. ठीक है, तो this is मैम इसको एक बार तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते थे ना मैम, जैसे अगर हम सीधा -1 लेते और सीधा वो 2 लेते, -2 लेते हैं, तो ये अगर हम इक्वेशन में डालते तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती हाँ है बिल्कुल क्वाड्रेटिक बिल्कुल, इक्वेशन की। यस वो भी एक तरीका है कि हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है ना, इट विल टेक टाइम, क्योंकि कई बार तो होता है कि देखो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट इनिशियली विद आइदर 0, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद 0, देन यू विल सब्स्टिट्यूट 1 -1 2 -2, सपोज वो तो यहाँ पर 1 और -1 और 2 आ गया, ठीक है, बट अदरवाइज अगर 1 और 2 नहीं आता तो आप क्या करते हैं, -1 +1 -2 +2 एंड सो ऑन, ऐसे जाते है ना, तो दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर यस मैम, जैसे अगर कोई फैक्टराइजेशन इफ इन केस पॉसिबल नहीं हो रहा और हमें एक फैक्टर मिल जाता है बस, तो मैम फिर उसको हाँ, जैसे तो हाँ फिर आप कर सकते हो, है ना, फिर आप उसको कॉमन निकाल के भी कर सकते हो और डिवाइड करके, जैसे हम डिवाइड करते थे इस इक्वेशन को, है ना, उसके एक फैक्टर से, तो आप वैसे भी यू कैन डू दैट। तो क्योंकि जगह क्यूबिक की इक्वेशन जो होती है हमारी, क्यूबिक तो ऐसे ही सॉल्व होती है कि वी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड वी टेक वन फैक्टर of that equation then we divide that equation, फिर उससे हमें quadratic equation मिल जाती है, then again you will solve that quadratic equation, hence you will get the 3 roots, right? In that way. Okay, fine. So this is I think more than enough for today's class. Yes ma'am. Thank you ma'am. Just a minute, let me download the attendance. Thank you ma'am. Thank you. Just a second, don't leave now. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Wait. Jai ma'am. Yes, you may leave now. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you all of you. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you all of you. Thank you. Thank you ma'am.